Hello, everyone. Welcome back to Spotlight by Buzz in Content. This is Nivedita, and today we have with us our amazing Jesus Mehta. He's a musical content creator, and now let's know more about him in his own words. Yeah, so I am Jesus Mehta, and I perform beatboxing and I do raps and stuff, basically hip hop, uh, interconnected to the hip hop industry. Okay, and when you say beatbox, this is what I actually do. And yeah, and apart from beatboxing, I also write some raps, remix some already pre-made songs, also write some original songs. I've written God Complex, one of my recent releases. And yeah, that's basically what I do. I just play things and I write stuff. That's it. That sounds wonderful. And could you let us know, like, take us down memory lane? How did all of this begin? Like, do you remember the breakthrough reel or content that got you a loaded followers or that went viral and for you to be like, oh, now I'm getting people to notice me? Yeah, actually, it is a very fun journey. I started creating content in like 2016, 17 ish, like in between that, and I learned beatboxing in 2015 actually. So I've been doing this since 9 years, I guess, and I wanted to show people what I can like, how beatboxing works, because where I'm from Gujarat, and probably. In 2016 there was no other beatboxer than me, other than me. So I was the first one in Gujarat, if I'm not mistaken. Like, someone can correct me, but I know I have searched many of them at that time, and no one has like, no koi aaya nahi tha ki bhai I am a beatboxer, we can jam it. I started beatboxing since 2015, and then I taught some of my friends, and then we made a crew, and then we started a beatboxing crew, and then we started performing live. So I started creating content around that. So I started from 2016. I started posting on Instagram, and uh, probably after like 2 3 years, I wasn't fully active on that, but I was, it was just a time pass for me. Because I was also doing computer engineering. So during that time, first I started making videos, and then I got caught up in my exams and all. So it was on and off. I was on and off. I started fully creating content from 2019, where I was like, passed my 2000. I passed my computer engineering in 2018, I guess, and then in 2019 I started creating content, because I thought कि यही है जो लगता है मुझे करना है, and I was also good in computers, but I didn't want to do 9 to 5 job actually. So I thought कि it can go further as up. So I started creating content on short media platforms. इससे पहले भी जो आए थे तो बैन भी हो गए. I started creating content on that, and then वहाँ पे मेरी like 1.5 million audience बनी, and I was like, अच्छा यहाँ पे ऐसा हो सकता है. So I should explore other content, other platforms as well as a. So I started creating content on YouTube and Instagram simultaneously, but more focused myself on YouTube, because ऐसा सुना था कि भाई वहाँ पे audience ज्यादा appreciate करती है art को. So ऐसा लगता था. So then I tried my luck in different beatboxing styles, different music art forms. Like, when you hear beatboxing, you always think of like it is a hip hop iteration, it is a hip hop version. So you always think of a foreign, a non-Indian beat when you just think of beatboxing. But all I wanted to do is incorporate Indian beats with my with the beatboxing stuff. So there, when then I started
मेकिंग रिलेटेबल बीट्स वेयर पीपल जैसे मैंने अभी आपको फॉर्म करके दिया है कि लाइक आई प्लेड गरबा, तो पीपल इन गुजरात, पीपल इन माय होम टाउन फेल्ट रिलेटेड। आई प्लेड मराठी बीट बॉक्स, आई प्लेड साउथ इंडियन बीट बॉक्स। सो ऐसे ऐसा करके पूरी इंडिया की ऑडियंस धीरे धीरे मुझसे कनेक्ट होती गई। आई ऑल्सो यूज टू राइट सॉन्ग इन 2012-13 फॉर गुजराती बॉलीवुड, गुजराती इंडस्ट्री, नॉट बॉलीवुड, गुजराती मूवी इंडस्ट्री। So that also helped, and I started writing raps for video games basically because मार्केट में तब उस टाइम पबजी एंड ऑल वो सब बहुत ज्यादा चल रहा था। सो आई स्टार्टेड राइटिंग रैप्स फॉर बीजीएमआई, पबजी, फ्री फायर, माइनक्राफ्ट, व्हाट एनी वीडियो गेम यू से। एंड देन ऐसे ऐसे करके पूरा कंटेंट क्रिएशन का जर्नी शुरू हुआ। एंड देन आई दिस इज व्हाट इट इज लाइक, इट इज व्हाई वी कॉल इट अ जर्नी, बिकॉज वी फिगर इट आउट after creating so many videos that this is what audience actually wants at that time, because content wave changes as a. So if we think about 2019-20, it was raw content phase where people used to take a selfie camera and they used to record, and that used to go viral. We content wave has changed again. People want good edited video, flashy edits, attention grabbing edits, and that are going viral more ऐसा। तो ऐसे फिगर आउट करते करते पता चला कि हाँ यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, ये अच्छा गया। तो द फर्स्ट वीडियो दैट गॉट लाइक 1.2 million views. It is not a video, it is a short video. It is a short YouTube short as well. So that was a PUBG game video. Like PUBG was banned and people were upset. I don't, मतलब मुझे आई नो कि इट वाज क्लोज टू देम, बट मुझे पता नहीं था। सो आई स्टार्टेड डूइंग माय रिसर्च कि भाई एग्जैक्टली क्या है ये पबजी एंड ऑल, एंड पीपल वर सो सेंटिमेंटली इन्वॉल्वड इन दैट कि आई थॉट कि अगर इस पे कुछ गाना बने ना, सो पीपल विल लाइक इट। सो आई ट्राइड टू मेक अलविदा सॉन्ग, लाइक जस्ट टू लाइक गिव अ ट्रिब्यूट कि भाई तुम जा रहे हो तो ये सॉन्ग लेते जाओ ऐसा। सो दैट गॉट लाइक excuse me, that got like 1.2 million views, and I मिथ द हेल आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। मतलब जितने भी उस पर्टिकुलर गेम के जितने भी अपडेट्स आ रहे हैं, लाइक इट इज गॉन, इट इज बैंड, तो उस पर वीडियो आ रहा है, वो उसका अनबैन का न्यूज आ रहा है तो उस पर वीडियो आ रहा है। आई कंप्लीटली मिथ द हेल आउट ऑफ इट, एंड पता चला कि दैट एक्चुअली काइंड ऑफ वर्क एज अ, तो दैट एक्चुअली ब्लू। एंड वो जो वीडियोस की सीरीज थी ना, उससे धीरे धीरे पता चलता गया कि अच्छा ऑडियंस को ये चाहिए, ऑडियंस के सेंटिमेंट्स यहाँ पे टच हो रहे हैं, लाइक आई नीड टू मेक देम फील इमोशनली कनेक्टेड विथ माय कंटेंट ऐसा। तब जाके धीरे धीरे फिगर आउट हो रहा था, एंड देन कंटेंट वेव चेंज्ड, एंड देन तो फिर मैं आया इंस्टाग्राम पे, बिकॉज यूट्यूब, माय यूट्यूब सब्सक्राइबर काउंट वेंट फ्रॉम 20K to million like in 1 year एक्चुअली, एक साल में हो गए थे। तो आई वॉज लाइक कि मैं इसको और मतलब अभी इंस्टाग्राम यूट्यूब तो हो गया, लेट्स गो इट ऑन इंस्टाग्राम, आई सेड लेट्स डू इट ऑन इंस्टाग्राम। So then I started, figuring it out on Instagram कि भाई यहाँ पे क्या चल रहा है, बिकॉज दोनों प्लेटफॉर्म बहुत अलग है। दे बोथ आर लाइक पोलर अपोजिट। उनकी ऑडियंस भी, मतलब इफ अगर एक इंसान यूट्यूब पे अगर इतना सपोर्ट दे रहा होगा तो इंस्टाग्राम पे उसको सपोर्ट नहीं देगा। इट इज लाइक ऐसा, एक ही इंसान के दो पोलर अपोजिट पर्सनालिटी दोनों प्लेटफॉर्म पे दिखती है ऐसा। तो आई स्टार्टेड फिगरिंग इट आउट कि भाई यहाँ पे क्या चल रहा है। तो पता चला कि भाई यहाँ पे ट्रेंड्स चल रहा है, यहाँ पे अलग अलग ऑडियोज ऐसे चल रहे हैं जो लोगों को नहीं पता, जिसका मीनिंग वो भी मतलब उस पे झूम रहे हैं। तो देन आई स्टार्टेड कि अगर उनको मीनिंग नहीं पता है, देन लेट्स टेक आउट द मीनिंग, एंड देन रीराइट इट इन ऐसी लैंग्वेज कि भाई वो समझ सके। तो देन आई क्रिएटेड खलासी वीडियो कि भाई खलासी जो है वो आदित्य गढ़वी भाई ने गाया है, ही इज अ गुजराती, आई एम अ गुजराती, आई नो व्हाट ही इज सेइंग बट पीपल डोंट नो व्हाट ही इज सेइंग। सो आई रीरोट दैट पर्टिकुलर लिरिक्स इन हिंदी। तो लोगों को पता चला कि ये एक्चुअली वो वैसा सॉन्ग है ही नहीं जो लोग समझ रहे। इट इज अ मोटिवेशनल सॉन्ग, एंड इट इज लाइक कि भाई ये तो दैट ऑल्सो ब्लू। तो धीरे धीरे मैं मतलब वैसे कंटेंट मैंने लगा कि इट इज ऑल्सो इंफॉर्मेटिव एंड इट इज ऑल्सो एंटरटेनिंग एंड इट इज म्यूजिकल, तो वो तो है ही ऐसा। तो दिस इज व्हाट माय ओवरऑल इतना वो जर्नी ऐसा।
That sounds wonderful. And there are few 2 to 3 points that I really found interesting in your entire journey. First, the way you found the focal points. So I would like to talk a bit more about it. What do you think there are a few focal points that content creators need to focus on for their audience? Like one, you said the language thing, like you had Gujarati beats, you had Marathi beats, because you wanted to take the entire Indian diversity along with you. The second thing that you said was the emotional and relatable connect that you use with PUBG. So, what are some such focal points you think content creators need to focus to garner their attention? See, when we say content creators, it is a wide range. Okay, and इतना इतना वाइड रेंज में ना, इट इज सो सब्जेक्टिव दैट इट इज ऑलवेज अ पर्सनल थिंग कि कोई अपनी खुद की जर्नी कैसे वो डिसाइड कर रहा है, खुद खुद किससे फिगर आउट कर रहा है। बिकॉज मेरी पर्सनालिटी क्या है कि आई वांट पीपल टू अंडरस्टैंड मी, ये मेरी बाय डिफॉल्ट पर्सनालिटी है। सो ये मेरे कंटेंट में दिख जाती है कि मैं कभी कभी चीजों को ओवर एक्सप्लेन कर देता हूँ, कभी कभी चीजों सिंपल चीजों को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, लोगों को जब दूसरे लोग कंटेंट बनाते होंगे तो उनकी खुद की पर्सनालिटी उसमें झलकती होगी। आई सजेस्ट देम कि भाई तुम खुद जैसे हो ना, अगर वैसे ही तुम वहां पे दिखोगे ना, तो दैट विल बी अ वेरी बिग, लाइक वो कॉन्फिडेंस दिख जाता है कि भाई इसमें मैं फेक नहीं बन रहा हूँ। तो इस जगह पे जब आप यू नो व्हेन यू फोकस ऑन दिस थिंग कि भाई मुझे खुद से चेंज नहीं होना है, तो व्हेन यू वांट टू डिलीवर समथिंग ना, तो वो अपने आप से डिलीवर हो जाएगा। लाइक व्हेन आई सेड कि भाई पबजी के लोगों को मुझे इमोशनली मतलब फील करवाना है कि क्या, तो आई पर्सनली प्लेड पबजी। आई पर्सनली मैं देखा, 1-2 हफ्ते देखा कि भाई एग्जैक्टली क्या है, लोग कहाँ जा रहे हैं, मुझे गन्स के नाम पता चले, मुझे वो नाम पता चले, मैप्स के नाम पता चले, तब जाके पता चला कि अच्छा यहाँ यहाँ लोग इमोशनली कनेक्ट हो रहे हैं। इस जगह ये जगह तो ये चीज तो हर एक के साथ हो रही है, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हर एक के साथ हो रहा है, ऐसा लैग मार रहा है वो हर एक के साथ हो रहा है। सो व्हेन यू अगर आपको कुछ डिलीवर करना है ना, यू स्टडी द हेल आउट ऑफ इट। ऐसा कि अगर कुछ भी करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी सॉन्ग पे बना रहा हूँ, तो आई जस्ट स्टडी इट। लाइक अभी तो एक एक रात में स्टडी करता हूँ, बट पहले वो एफिशिएंसी आ गई है, बट पहले आई यूज टू लाइक वर्क अ वीक, एक पूरा वीक लगाता था सिर्फ एक एक 40 to 50 सेकंड वीडियो के लिए। सो यू नो ऑलवेज चूज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। मैं 15-15 दिन में सिर्फ एक वीडियो डालता हूँ, बट वो ऐसे डालता हूँ कि इट इज लाइक 99% पॉसिबिलिटी कि भाई वो मिलियन हिट करेगा, मिलियन के ऊपर जाएगा ही, ऐसा। सो ऑलवेज थिंक क्वालिटी बिफोर क्वांटिटी, एंड बहुत बहुत ज्यादा अपने वो उसको टाइट रखो कंटेंट को, ऐसा, तब जाके वो ऐसे डिलीवर होगा, ऐसा। Got it. So most of the gist is basically कि आपको पहले authentic होना है, like you need to know what you really want to do, and then you go for it. Yes. So that's something I think a lot of people lose because they chase trends, but they don't really know what to do, what they want to do themselves. Second, मुझे बस ये पूछना था, this is something on the way of paid partnerships and brands and ads and collaborations. I'm just curious, do musical content creators get as much as brand deals as fashion or lifestyle content creators, or what kind of brand deals do you usually get, and what are some things you keep in mind when you need to endorse something? That is a very good question, because as you said, do actually musical creators earn money from this thing? तो पहले ऐसा लगता था मुझे कि सी, मैं इसको है ना थोड़ा सा लेमैन टर्म्स में समझाना चाहूंगा। बिकॉज अगर कोई इंसान रात को प्रॉपर थक हार के कॉर्पोरेट लाइफ से थक हार के आ रहा है अपने घर, और वो बैठ के पैर पैर टिका के बैठ रहा है, एंड ऑल ही वांट टू डू इज स्क्रॉल इंस्टाग्राम रील्स और वॉट एवर द प्लेटफॉर्म इज, ठीक है, तो ही वांट्स एंटरटेनमेंट। पहले 5 सेकंड में उसको एंटरटेनमेंट नहीं मिला ना, तो वो स्क्रॉल कर देगा। वो ना ही वो मुझे पैसा दे रहा है कंटेंट देखने के लिए, ना ही वो खुद किसी और को मतलब वो कर रहा है कि नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छा है इसको देखो, ऐसा करके। ऑल यू वांट इज एंटरटेनमेंट, ठीक है। एंड वंस वी फोकस ऑन दैट, तब जाके लोगों को पता चलता है कि अच्छा यहाँ पे एंटरटेनमेंट है, यहाँ पे एंटरटेनमेंट नहीं है। सो व्हेन आई से कि अगर मैं खुद, पहले मैं करता था ऐसा कि आई जस्ट यूज टू डू बीट बॉक्स, शो माई टैलेंट एंड गो, नथिंग एल्स, ठीक है। बट देन आई स्टार्टेड क्रिएटिंग यू नो सर्टेन लाइक पार्ट्स कि भाई यहाँ से यहाँ तक इंट्रोडक्शन है, यहाँ से यहाँ तक एक्सप्लेनेटरी पार्ट है, और यहाँ से यहाँ तक मेरा वो पार्ट है जो जो मैं जिसमें मैं दिखाता हूँ एक्चुअल में कि मैं क्या करता हूँ, ठीक है।
तब जाके ब्रांड स्टार्टेड रीचिंग मी आउट कि भाई अच्छा यहाँ पे ऐसा करो, यहाँ पे ऐसा करो, यहाँ पे मेरा डाल दो, प्रमोशन डाल दो. सो व्हाट आई वांट टू से इज कि व्हेन यू लाइक मेकिंग योर कंटेंट ब्रांड फ्रेंडली इज द बेस्ट सजेशन लाइक आई कैन गिव. ठीक है, जैसा मैंने अभी बोला. बट सबसे मेन चीज है कि भाई अगर जैसे आपने बोला कि अगर म्यूजिकल कंटेंट क्रिएटर्स लाइक डू दे एक्चुअली अर्न मनी, अगर आप उस म्यूजिकल कंटेंट को ब्रांड फ्रेंडली बनाओगे तब तभी जाके यू कैन अर्न मनी. अदरवाइज वो सिर्फ और सिर्फ एक टैलेंट शो करने का वो जरिया बनेगा. एंड अगर ब्रांड नहीं दे रही है, लाइक ब्रांड आर नॉट रीचिंग आउट, देन यू कैन बिल्ड योर ऑफलाइन ऑडियंस कि भाई आप टैलेंट शो करके आप ये बता सकते हो कि यहाँ पे मैं शो करने जा रहा हूँ, यू कम देयर ऑफलाइन मिलके यू कैन परफॉर्म स्टेज शो एंड ऑल. तो ये एक दूसरा वो है क्या टेंजेंट है जहां से हम लोग कर सकते हैं. आई थॉट कि मैं ऐसा करूंगा, बट थिंग्स टुक अ टर्न एंड यहाँ से मुझे फिर मेरा लाइक खर्चा निकल रहा, तो इट इज ओके ऐसा. तो दिस इज व्हाट आई वांट कि भाई अगर आप कंटेंट बनाना शुरू कर रहे हो, सी व्हाई दिस क्वेश्चन एक्चुअली अरोज. मैंने बोला कि गुड क्वेश्चन क्यों, क्योंकि कोई कॉमेडी कंटेंट क्रिएटर को ऐसा नहीं पूछेगा, बिकॉज उसकी नीश इसीलिए अच्छी है. जो मैं वापस कॉल बैक देना चाहूंगा कि कोई एक इंसान एंटरटेनमेंट चाहता है, अगर कॉमेडी कंटेंट क्रिएटर अगर कुछ बना रहा है, उसमें एक एंटरटेनमेंट फैक्टर बाय डिफॉल्ट आ गया है कि भाई वो कॉमेडी है. ठीक है, तो लोग उसको ज्यादा देखना पसंद करेंगे. ठीक है, एट द सेम टाइम अगर म्यूजिक क्रिएशन है तो वो उसकी ऑडियंस भी लिमिटेड हो जाती है कि भाई जिसको संगीत पसंद है वो वही देखेगा. इसीलिए ब्रांड भी उसको उसी लिमिटेड लिमिटेशन रहेगी. आई जस्ट वांट कि अगर कॉमेडी के एंटरटेनमेंट से अगर मैं एंटरटेनमेंट उठा लूं और म्यूजिक के उससे मैं टैलेंट उठा लूं, तब जो जाके एक हाइब्रिड चीज बनती है ना, देन यू कैन गेट ब्रांड प्रमोशंस, और उससे पैसा इंसान कमा सकता है ऐसा. दैट इज व्हाई आई एक्सप्लेन ऑल ऑफ दैट. That sounds very interesting. And there was something that you really said that I want to pick up on. जहाँ पे आपने बोला कि you need to make your content brand friendly. So there are two things that I want to ask on this. One is, can you shed more light on what exactly you mean by brand friendly? In the sense, जैसे आपने बोला entertaining बनेगा तो ज्यादा लोग देखेंगे, जिससे brands will also approach you. Is that what you mean by brand friendly, or do you mean more like जो brands बोलते हैं वही करना and something like that? आपका दूसरे जो पॉइंट पे अगर हम लोग बात करें कि जो ब्रांड्स बोलते हैं वही करना, वो जो बात कर रहे हैं, तो यू विल लूज योर सेल्फ इन दैट. व्हाट आई टेंड टू डू इज आई वो जो बोलते हैं मैं उसको मेरे वे में अपनी ऑडियंस, बिकॉज व्हाट आई से कि मुझे मेरी ऑडियंस पता है, आप जैसे बोल रहे हो ना वैसे वो नहीं लेगी. अगर आपको ऐसा चाहिए तो मैं आपको ऐसा नहीं दे सकता हूँ. बट इफ यू आर फ्लेक्सिबल इनफ कि अगर आप मुझे लिबर्टी दो कि मैं अपने वे में समझाऊं और आपके पॉइंट्स भी आ जाए, और आप जो इफ यू से कि दीज आर द डोंट्स दैट वी वांट, तो अगर वो भी आ जाए, तो अगर आप उतने फ्लेक्सिबल हो, देन वी कैन वर्क एंड आई विल डिलीवर वॉट एवर यू सेड टू मी टू देम इन माई वे ऐसा. यू इफ यू सी माई रिसेंट ब्रांड्स, मैं अगर इफ यू सी दिस बोल्ड केयर a campaign, it is a product like for lasting long in bed. Okay, अब वो मैं अपनी ऑडियंस को कैसे बताऊं? आई मेड अ सॉन्ग आउट ऑफ इट, आई मेड अ फनी सॉन्ग आउट ऑफ इट, जिससे मैसेज कन्वे हो गया और ब्रांड को प्रमोशन भी मिल गया, एंड इवन दे कैन यूज दैट पर्टिकुलर थिंग वो उनके से. तो दिस इज हाउ आई से कि ये कंटेंट ब्रांड फ्रेंडली है. ब्रांड को मिल रहा है मेरे से क्या चीज मिल रही है, ब्रांड को ऑडियंस मिल रही है, ब्रांड को एक ऐसा पीस मिल रहा है जो वो खुद यूज कर पाएंगे. ठीक है, और ब्रांड को ये भी मिल रहा है कि भाई ऐसे ऐसे वे में प्रेजेंट हो रहा है कि जहाँ पे और भी ज्यादा लोग, जो लोग मतलब जितने लोग को रीच आउट हो सकता है उतने लोगों को हो जाएगा ऐसा. सो दिस इज व्हाट आई मीन बाय ब्रांड फ्रेंडली कि अगर वो मेरी ऑडियंस है तो मुझे पता है, बट एट द सेम टाइम ब्रांड को इनकॉर्पोरेट करना भी उसके अंदर होना चाहिए ऐसा. So yes, That sounds very interesting. And I just wanted to ask, so basic just ये है कि if the brands are flexible enough, if the brands put flexibility on the table, and the content creator naturally brings the audience, the relatability and the creativity, is that what you mean? यस 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 डेफिनेटली वही तो. बिकॉज अगर वो चीज वो हो जाएगी प्रॉपर, तो वो एक हाइब्रिड ऐसा बन जाएगा कि कंटेंट भी होगा, एड भी होगी, उन लोग को प्रमोशन भी होगा, एंड पीपल विल आल्सो लाइक इट. लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये तो ऐड कर दिए.
इट शुड बी सटल इनफ, एंड इट शुड ऑल्सो बी लाइक बोल्ड इनफ कि भाई वो बोल भी रहा है और उसको एंटरटेनमेंट भी दे रहा है. सो लाइक अगर कोई, जैसे मैंने बोला कि अगर कोई स्क्रॉल करने वाला इंसान वो देखेगा तो उनको उसको एंटरटेनमेंट भी वो ऐसा उससे उसके साथ नाइंसाफी नहीं होगी. जिसने मुझे फॉलो किया है, आई वांट कि उसको भी जस्टिस मिले, कि भाई उसने अपना कीमती फॉलो दिया है. एक फॉलो एक कीमती होता है मेरे लिए. उसने अगर अपना कीमती फॉलो दिया है तो आई वांट कि उसके लिए एंटरटेनमेंट भी उसमें हो. सिर्फ मैं जाके ऐसा मना बोल दूं कि भाई ये जाओ ये लो ये अच्छा प्रोडक्ट है, ओके, दैट इज नॉट व्हाट आई वांट. दैट इज कंप्लीटली नॉट लाइक डूएबल एट ऑल ऐसा. Got it. So talking more about how you talked about you need to be responsible for your followers, because nearly like million followers, even more than that, is a big number. It's a huge responsibility. So how do you like, justify the responsibility when it comes to the type of brands you pick for the deal? Because, there are a lot of ethical standards that content creators need to Yes, yes, follow. yes, yes. इनफैक्ट वी आर ऑल्सो, वी शुड बी ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल कि भाई मैं अगर मेरी ऑडियंस को कुछ दे रहा हूँ, सो दैट इज नॉट लाइक कि उसमें कुछ गड़बड़ ना हो. ठीक है. लाइक व्हेन ब्रांड वांट्स टू प्रमोट समथिंग, सबसे पहले तो ये देखना होगा कि वो प्रमोट क्यों करना चाहती है. इज हिज और इज देयर प्रोडक्ट लाइक गुड इनफ कि भाई वो सिर्फ प्रमोशन से चल जाए ऐसा. सो दिस इज व्हाट माय टीम डज कि भाई वो जितनी भी ब्रांड्स आती है ना, दे वो ही फिल्टर आउट कर देते हैं कि नहीं, जीसस यू नीड टू डू दिस एंड यू कांट डू दिस ऐसा. एंड आई कंप्लीटली ट्रस्ट देम कि भाई हाँ ये लोग ने बोला है तो सही है. इफ लाइक अगर ऐसा कुछ होता है कि लाइक ये ब्रांड मुझे अच्छी लगती है, बट ऐसा हो सकता है कि लाइक देयर प्रोडक्ट इज नॉट गुड फॉर माय ऑडियंस ऐसा, तो वो मुझे कुछ सजेस्ट कर देंगे कि देखो जीसस यू कैन डू दिस बट वी डोंट सजेस्ट यू. एंड आई टोटली अग्री कि अगर मेरे फॉलोअर तक वैसा नहीं पहुंचना चाहिए कि भाई वो कल को मुझे अगर पर्सनली मिले तो बोले कि यार आपने ये इसकी एडवर्टीजमेंट की थी बट वो उतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं निकला ऐसा. सो आई कंप्लीटली लाइक ये सारी जो चीजें हैं वो मेरी टीम ही देखती है कि मतलब वही सब वो देख लेती है इसमें. Okay, so you have a very solid team that you trust on. दे आर अमेजिंग. इस बारे में तो एकदम प्रॉपर है वो तो. So again, talking about that, how important do you think such a team is for a content creator? Like what are the focal points that a good team focuses on for a content creator? See, अभी इसमें ऐसा है ना कि व्हेन आई से कि एक टीम होनी चाहिए, इट इज आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट कि भाई आपको टीम की जरूरत होगी ही ऐसा. आई नो कि व्हेन अगर एक कंटेंट क्रिएटर है ना, ही इज बेसिकली इंट्रोवर्ट. मैं नहीं हूँ, बट अगर कोई कंटेंट क्रिएटर होगा तो वो इसीलिए होगा कि वो एक इंट्रोवर्ट है. और ये बाय डिफॉल्ट बहुत लोगों का ऐसा, मेरे खुद के क्रिएटर दोस्त लोगों को मैंने देखा है कि इज एन इंट्रोवर्ट और वो किसी और के साथ बात भी नहीं करेगा, और अगर ब्रांड ही लाएगी तो वो खुद ही मैनेज कर लेगा, हर एक चीज खुद कर लेगा ऐसा. आई डोंट वांट टू इंटरेक्ट विद एनीबॉडी. बट मेन चीज ऐसा है कि एक पॉइंट आता है जब आपको एक ऐसी टीम रखनी होती है जो आपका जो ध्यान है उससे डिस्ट्रैक्ट कर सके कि भाई ये सब मत देखो, आप क्रिएटिविटी पे फोकस करो. एंड थैंक्स टू माय टीम आई जस्ट आई कैन जस्ट क्रिएट माय कंटेंट विथ पीस. मुझे कुछ ऐसा देखने की जरूरत नहीं है कि भाई ब्रांड्स क्या ले रही है, ब्रांड्स क्या दे रही है, व्हाट दे वांट, ये सारे वो ही क्यूरेट कर लेते हैं. दे जस्ट वांट मी कि भाई आप अपनी क्रिएटिविटी लो. अगर ये ब्रांड आ रही है तो इसमें आप कैसे क्रिएटिविटी करोगे. अगर आपको नहीं मजा आ रहा है, लेट्स उसको कैंसिल करते हैं. अगर आपको ये ब्रांड पसंद, हम उसको अप्रोच करते हैं. ये सारी चीजें हैं ना, वो सब कुछ तब जरूरत पड़ती है व्हेन यू ग्रो एंड व्हेन यू आर इन लाइक ऐसे बडिंग क्रिएटर हो ना जो अभी ग्रोथ पे हो. ठीक है. व्हेन यू आर ऑलमोस्ट एट लाइक कि भाई हाँ अभी धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है, तो तब अगर आपको ऐसी टीम मिल जाए ना जैसी मुझे अभी मिली है, तब जाके वो ग्रोथ ज्यादा फ्रीली और ज्यादा क्या स्मूथ हो जाएगा. वरना देर आर सो मतलब इतने ब्रांड्स अभी ऐसा है ना कि इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन आती है. सबसे पहले तो मैं वो पूरा फ्लो दिखाता हूँ कि भाई ब्रांड्स सबसे पहले तो आती है, उनको उनसे नेगोशिएशन करना पड़ता है. नेगोशिएशन के बाद लॉक होती है. लॉक के बाद उनको डिलीवरेबल्स देने होते हैं. डिलीवरेबल्स के बाद उनका अप्रूवल लेना होता है. अप्रूवल आने के बाद चेंजेस हो, अगर ना हो तो अप्रूवल होता है, नहीं तो चेंजेस करने पड़ते हैं. चेंजेस करने के बाद डिलीवरेबल्स डन होने के बाद लाइव जाने के बाद वीडियो, उसके बाद पेमेंट का फॉलोअप लेना पड़ता है. अब ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीज मेरी
ये सारी चीज मैं क्यों करूं, अगर मेरी टीम ये सब करे और मैं साथ में यहाँ पे मेरा दूसरा काम शुरू कर दूं कि भाई ये जो दिस इज द लाइक 30 डे प्रोसेस, पूरा का पूरा 30 डे प्रोसेस, ठीक है। इस 30 डे प्रोसेस में मेरा माइंड इसी पे स्टक रहेगा, लाइक कहीं ना कहीं यहाँ पे तो वो रहेगा ही, अरे इससे फॉलोअप लेना है, अरे इसका अप्रूवल नहीं आया, इससे ये हुआ है, अरे पेमेंट बाकी है। तो ये जो पूरा का पूरा ये जो है ना, ये पूरा सिनारियो सब मेरी टीम देखती है, और मैं सिर्फ क्या करता हूँ, आई जस्ट कम टू माई स्टूडियो, मैं अपना कीबोर्ड लेता हूँ, अपना पीसी शुरू करता हूँ एंड राइट स्टफ, एंड आई राइट माई स्क्रिप्ट एंड आई अपलोड स्टफ, ऐसा। तो दिस इज वेयर द टीम इज वेरी हेल्पफुल कि एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे आपको लाइक यू शुड हैंड ओवर योर वर्क टू योर टीम एंड दे विल सपोर्ट। और क्या है कि अगर उन लोग का सपोर्ट इतना अच्छा रहेगा, लाइक आई हैव चेंज माई लाइक एजेंसीज एंड ऑल पास्ट में, अभी तो नहीं, बट पास्ट में मैंने एजेंसी चेंज किए क्यों, क्योंकि जो मुझे करना होता है क्रिएटिविटी एंड स्टफ, उसके साथ साथ मुझे एजेंसी से फॉलोअप लेना होता था कि भाई आपने ये फॉलोअप लिया कि नहीं, आप ये नहीं फॉलोअप किया। सो दैट इज व्हाट आई वांट कि भाई अगर मैं अपना काम दे रहा हूं तो बस वो फिर मेरा हेडेक है ही नहीं, ऐसा। तो अभी इतना सही, इतना स्मूथ चल रहा है वो इसी वजह से कि भाई ग्रोथ भी स्मूथ हो रहा है और ये सारा फॉलोअप और वो सब भी अच्छे से हो रहा है, ऐसा। अच्छा, सो व्हाट आर सम थिंग्स जो आप दिमाग में रखते हो एजेंसी या टीम को पिक करते हुए, जो आपको लगता है कि कंटेंट क्रिएटर्स को ये दिमाग में रखना चाहिए, द बॉर्डिंग कंटेंट क्रिएटर्स विल इवेंचुअली नीड अ टीम? फर्स्ट ऑफ ऑल द बैकग्राउंड, मतलब मैं अगर एजेंसी चूज करता हूँ तो लाइक सबसे पहले तो उनमें जितने भी लोग हैं ना, उनका बैकग्राउंड क्या है, नॉट पर्सनल बैकग्राउंड, वो अपना उनका मैटर है, बट वो ये कॉर्पोरेशन में से कौन से बैकग्राउंड से आए, लाइक दिस पर्सन इज फ्रॉम दैट मीडिया, दैट पर्सन फ्रॉम दैट मीडिया, ये यहाँ से, ये यहाँ से, यहाँ से, और इन लोगों का एक अमालगमेशन यहाँ पे आया है, और इन लोगों ने एक टीम बनाई है, और ये टीम है जो मुझे, मतलब जो हम मेरे साथ जुड़ना चाहती। तो आई गो देयर पर्सनली, मैं उनसे मिलता हूँ, मुलाकात लेता हूँ। मेरी टीम में तो मेरा मतलब लाइक 2 लोग तो ऐसे जो मेरे एकदम खास दोस्त है, ठीक है, विच आई नो देम पर्सनली, और यहाँ पे वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आप पर्सनली, तो वी नो देयर गोल्स, वो, और जब हम आपके गोल्स अलाइन होते हैं ना, तो हम हमारा जो ग्रोथ की स्पीड होती है वो डबल हो जाती है, ऐसा। लाइक वन ऑफ देम इज श्रीकांत, वन ऑफ देम इज प्रथमेश, ठीक है, ये दोनों मेरे बहुत बहुत अच्छे दोस्त हैं। एंड मैं उनको, श्रीकांत तो मैं डेली बेसिस पे मिलता हूँ, प्रथमेश इज फ्रॉम मुंबई, तो मैं उसको भी मिलता रहता हूँ लाइक टाइम टू टाइम। तो लाइक ये दोनों दोस्त ऐसे हैं जो मुझे जानते हैं ऑन पर्सनल लेवल कि नहीं, जीसस ये करेगा, जीसस ये नहीं करेगा, जीसस को ये पसंद नहीं है, ऐसा। सो दैट ये जो थिंग है ना, इसको बहुत इंपॉर्टेंस देना होता है कि आप पर्सनल लेवल पे कितना कनेक्टेड हो। लाइक आई नो पीपल से कि पर्सनल चीज प्रोफेशनल चीज अलग रखनी होती है, बट जहां पे आपको ग्रोथ करना होता है ना, वहां पे प्रोफेशनल गोल्स पर्सनली अगर कनेक्ट हो जाए ना, तो दे विल लाइक वो ग्रोथ की स्पीड डबल हो जाती है, ऐसा। That's true. There was something that's really important that a lot of content creators might need because unko matlab a lot of people are behind followers, but they rarely mention about their agencies and everything. So this was a really insightful talk. Coming back to your work, I just want to know, Gen Z बहुत picky है अपने music को लेके. Like कोई भी remix आ जाता है, they are not accepting of everything. So I Yeah, just want yeah, to know yeah. how do you pick like songs to remix और इस पे ये rap चलेगा, इस पे ये चलेगा, and if at all you receive backlash, how do you handle it? Yes, that is actually a very very good question. अभी 2 दिन पहले ही I was like talking to Shrikant about this कि भाई it is a double-edged sword. Remixing a song is a double-edged sword and has been a double-edged sword since decades. ऐसा लोग जब एक सॉन्ग के साथ कनेक्ट करते हैं इमोशनली, तो उसके साथ छेड़खानी करना इज लाइक वेरी रिस्की। लाइक पीपल ऐसे ऐसे लोग ऑफेंड हो जाते कि इस सॉन्ग को कैसे बिगाड़ दिया भाई आपने, ऐसा। फॉर्चुनेटली इनफ अभी तक ऐसा एक भी सॉन्ग नहीं निकला है मार्केट में मेरा जिसमें लोगों ने लाइक, अभी भी अगर मैं कमेंट सेक्शन चेक करूंगा, देयर इज नो, मोस्टली जीरो हेट कमेंट्स। किसी ने भी ऐसा नहीं बोला है, आई डोंट नो, मतलब सी आई एम नॉट बीइंग लाइक ऐसा वो नहीं हो रहा हूँ, आई एम नॉट बीइंग ब्रैगी अबाउट इट, ऐसा नहीं है। मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने वो इमोशन पकड़ा है कि भाई ये सॉन्ग का इमोशन ये है, आई अंडरस्टैंड सॉन्ग लाइक वेरी डीपली, ऐसा नहीं कि मतलब मैं उसमें ऐसे घुस जाता, वैसा वाला सीन नहीं है, बट ऊपर से जो उसका थॉट होता है ना, वो मुझे समझ में आता है, एंड आई राइट अकॉर्डिंग टू दैट, एंड पीपल लाइक
रिसीव इट लाइक दैट ऐसा। फॉर एग्जाम्पल अभी ये जो खलासी सॉन्ग था, दैट वाज लाइक अ सुपर हिट, सुपर वायरल सॉन्ग, ठीक है। ऐसा कितनी बार हुआ है कि जिसने वो सॉन्ग बनाया है वो खुद आके कमेंट करे कि भाई दिस इज एक्चुअली साउंडिंग गुड। कोक स्टूडियो भारत ने खुद आके कमेंट किया है कि भाई नहीं, दिस दिस एक्चुअली मेड आवर डे ऐसा। तो तब जाके मुझे रियलाइज हुआ कि भाई व्हेन आई राइट सॉन्ग्स वो बाय डिफॉल्ट ऐसा होता है। और ये ऐसा भी नहीं कि मेरी कोई सॉन्ग के लिखने की प्रोसेस है। मेरे स्टूडियो से मेरे घर तक का डिस्टेंस है 10 मिनट मैक्सिमम, और उधर से यहाँ तक आते आते मैं सॉन्ग लिखता हूँ, ठीक है। और और उतने में वो हो जाता है ऐसा। इट इज नॉट लाइक ये नेचुरल है, बाय डिफॉल्ट ऐसा हो जाता है। तो उसी को अभी ये तो राइटिंग प्रोसेस हो गया कि आपने सॉन्ग के थॉट को पकड़ के लिखा। अब करना है वैसे का वैसा रिकॉर्ड, कि भाई अगर आप जैसे अगर जॉनर है लव सॉन्ग है, ठीक है। अभी सजनी का जो गाना था, ओ सजनी रे, तो वो जो सॉन्ग है उसका जो थॉट है, मैं अपने फर्स्ट हाफ के जो वीडियो में उनको लोगों को बताता हूँ कि मैंने ये क्यों लिखा है। मैं लोगों को ये बताता हूँ, लाइक वन ऑफ माई स्क्रिप्ट गोज कि भाई जो सॉन्ग है ना उसमें ये बंदा ऐसा बोल रहा है और इस बंदे को ऐसा चाहिए, और उसको अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वापस मिलना है या अपनी बंदी के साथ वापस मिलना है। तो एक आपा फिर मिलेंगे करके एक सॉन्ग वायरल हुआ था। तो दैट वाज उसका मैंने पूरा सॉन्ग का ब्रेक डाउन करता हूँ मैं फर्स्ट हाफ में, लाइक ऊपर ऊपर से ब्रेक डाउन करता हूँ कि भाई ये इसका थॉट है और हमको इससे ही लिखना है। सो व्हेन आई कनेक्ट देम विथ मी कि भाई मैं इस थॉट प्रोसेस से लिख रहा हूँ, तब उनको भी पता चल रहा है ना कि भाई इसने ये सोचकर लिखा है तो ये बराबर लिखा है ऐसा। So that's when people get connected कि भाई यहाँ पे ये जो सॉन्ग है इसके साथ ये जा रहा है, तो अच्छा आ रहा है, मजा आ रहा है ये वो। इनफैक्ट वन ऑफ माई मोस्ट वायरल सॉन्ग जो था कला स्टार का था, जो हनी सिंह का था, ठीक है। वो सबसे पहला सॉन्ग था, अक्टूबर 24 को मैंने अपलोड किया था 2023 में। और वो बूस्ट हुआ, इतना बूस्ट हुआ कि हनी सिंह भाई ने खुद वो स्टोरी पे लगाया था, ठीक है। एंड व्हाई इज दैट, पीपल वर लाइक लोगों को चाहिए था कि पुराने जो हनी सिंह है वो आए, वो और एंड इट वाज मेंट टू बी अ हनी सिंह कमबैक। तो वो लोगों को उतना एक्सपेक्ट, मतलब इट वाज अ गुड सॉन्ग, इट इज अ गुड सॉन्ग एक्चुअली, बट लोगों की एक्सपेक्टेशन कुछ अलग थी हनी सिंह से। मैंने क्या किया, आई हैव बीन अ फैन ऑफ हनी सिंह, आई हैव बीन अ फैन ऑफ लाइक ओल्ड हिप हॉप सॉन्ग्स लाइक अ लॉट। एंड मैंने ये सारे सॉन्ग्स को पहले भी लाइक आई वाज राइटिंग सॉन्ग्स फ्रॉम 2012, राइट। सो बहुत टाइम हो गया, सो आई स्टडीड दो सॉन्ग्स बैक देन। तो मुझे लगा कि ये हनी सिंह, अगर एक्चुअल में जो हनी सिंह, जो पुराना हनी सिंह था, वो ऐसे गाता, ऐसे लिखता, उसके सॉन्ग्स ऐसे होते, तो लोग इतना कनेक्ट कर गए कि हाँ यही तो है हनी सिंह ऐसा। फिर आती है कला वहां पे कि भाई आप वैसा वॉइस टेक्सचर बना के गाओ, आप ऐसा कुछ ऐसे ऐसे कुछ मॉड्यूलेशन यूज करो, ऐसे कुछ इफेक्ट यूज करो जो हनी सिंह जैसा साउंड करे। सो नॉट जस्ट अबाउट हनी सिंह, बट मैं ये हर सॉन्ग के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ कि आप सॉन्ग को उसके जो रैप से ऐसे कनेक्ट करो कि आप कनेक्शन बताओ भी, लाइक यू स्पून फीड द कनेक्शन एंड यू ऑल्सो मेक द कनेक्शन सो सीमलेस कि लोगों को लगे कि हाँ ये उसी का एक पार्ट है और उसी का पार्ट होना चाहिए ऐसा। Okay, that's something very insightful. I think that is something that a lot of people relate with, especially जो आपने हनी सिंह के बारे में बताया था, because हम मतलब लोग अपने आर्टिस्ट और सॉन्ग से इतने जुड़े हुए होते हैं कि they are always like हाँ ये it's like a community that has formed. So that's going to be the last question that I want to ask कि why do you think, or if at all do you think, there's an increase in the craze for musical content on social media? लाइक रीमिक्सेस, रैप्स वगैरह की मतलब क्रेज बढ़ चुकी है, एंड व्हाई डू यू थिंक बढ़ चुकी है, इफ एट ऑल इट हैज? लोगों को पता चल रहा है, लाइक पहले जैसे म्यूजिशियंस थे वो सब क्लोजेट म्यूजिशियन थे, सब लोग बस म्यूजिक बना रहे थे, एंड जो मेन फेस ऑफ द म्यूजिक होता था, लाइक द वन हु यूज्ड टू एक्ट ऑन इन फ्रंट ऑफ इट, और यू यूज्ड टू लाइक सिंग इन फ्रंट ऑफ इट, वो लोग थे, वो लोग एक्चुअली फेस रहते थे और यूट्यूब पे उनका सॉन्ग चढ़ता था। अभी क्या हो रहा है कि ईज ऑफ एक्सेस हो गया है, सबके पास अच्छे अच्छे फोन्स आ गए, दे कैन शूट, दे कैन रिकॉर्ड, इक्विपमेंट्स बहुत इजीली अवेलेबल हो गए म्यूजिकल। तो जितने भी जो लोग हैं ना, वो
कलेक्टिवली सारे के सारे मतलब मेरे खुद के काफी सारे दोस्त हैं जो कुछ पहले डांसर्स हुआ करते थे, कुछ पहले लाइक सिर्फ रैपर हुआ करते थे, बट दे टर्न देमसेल्व्स इनटू म्यूजिशियंस। एंड ऐसा भी नहीं, दे आर गुड म्यूजिशियंस ऐसा। तो जैसे इज ऑफ एक्सेस बढ़ा है, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है इंडिया में, जैसे मतलब बहुत सारा डिजिटलाइजेशन बढ़ा है, तो इसके साथ साथ सब लोग सीखे भी है और सब लोग धीरे धीरे करके ऐसे कलेक्टिवली आगे बढ़े म्यूजिक में। और जैसे सब लोग आगे म्यूजिक में बढ़े, सब लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं कि अच्छा ये तो मैंने यहाँ सुना है, ये मैंने यहाँ सुना है। और जैसे जैसे सब लोग ऐसा करते गए, लोग रिलेट करते गए, और जैसे रिलेटिविटी बढ़ी, तो रिलेटिविटी जब बढ़ती है तब कंटेंट बूस्ट होता है, जब तब पूरा कंटेंट फील्ड बूस्ट होता है। पहले जैसे कॉमेडी क्रिएटर्स की जो वेव आई थी कि भाई एक दो जन खड़े हैं, एक जन के हाथ में फोन है और एक जन यहाँ से बोल रहा है, एक जन यहाँ से बोल रहा है, ये जो फॉर्मेट था कंटेंट का, लोग इससे रिलेट करते थे क्योंकि दोस्त लोग ऐसे ही बात करते हैं बाजू बाजू में बैठ के। नाउ पीपल नो व्हाट म्यूजिक इज, नो व्हाट हाउ म्यूजिक इज क्रिएटेड। तो जब मैं अपने पीसी पे वो पूरा वो इंटरफेस दिखाता हूँ कि ऐसे जा रहा है और वेव फॉर्म ऐसे है, तो लोगों को पता है कि हाँ ये म्यूजिक ये मैंने देखा। तो दैट इज वाई पीपल फील कनेक्टेड। एंड जितना मतलब ऐसे जैसे जैसे यशराज मुखाटे भाई, ही इज ऑल्सो लाइक अ वेरी वेरी गुड म्यूजिशियन। ही ऑल्सो शोज द प्रोसेस कि भाई मैंने कैसे बनाया, ये मैंने किक का वॉइस लिया, ये मैंने स्नैर का वॉइस लिया, ये यहाँ से मैंने ये कट किया। ही ऑल्सो शोज द प्रोसेस, ठीक है। तो जब इंसान प्रोसेस को शो करता है तो लोग उससे और कनेक्ट होते हैं, और जब लोग कनेक्ट हो रहे हैं तो फनी चीज ये है कि पहले जब इंसान सिर्फ परफॉर्म करके जाता था तब लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, बिकॉज इट इज अ शॉर्ट मीडिया प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए रहता है। अब इसमें लोगों को इस चीज का एंटरटेनमेंट मिल रहा है कि लोगों को इंसाइट्स मिल रही है कि म्यूजिक एक्चुअली बन कैसे रहा। दैट क्यूरियोसिटी हिट्स एंड लोग और रिलेट होते होते गए, एंड धीरे धीरे म्यूजिक पूरा का एज अ कंटेंट फील्ड, एज अ कंटेंट वेव, वो और आगे बूस्ट हुआ ऐसा। That's very interesting and thank you so much आपके पूरे conversation में वो it was very insightful थैंक layman यू। terms में मतलब सबको relatable काफी relatable लगा होगा and everything so thank you so much for sharing your journey with us इवन आई लव्ड इट, and मतलब आपने जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे, एवरी क्वेश्चन वाज टू द पॉइंट। मतलब ये चीज बहुत कम लोगों ने पूछी थी, और इवन आई वांटेड टू यू नो पीपल टू नो कि भाई देखो ये चीज होती है म्यूजिक में, ये चीज ऐसा होता है, एंड यू आस्क लाइक द क्वेश्चंस दैट एक्चुअली हिट दैट पॉइंट ऐसा। सो दैट वाज अ गुड थिंग। thank you so much, thank you everyone for watching, see you on the next episode of Spotlight.